Hello students, I Himani Joshi welcome you all to the Arpita Sharma classes. We are going to cover up modern Indian history for our upcoming examination. Hope so you are doing well and utilizing your lockdown period constructively. Let's move ahead. Subscribe to this channel of Simplifying UPSC is for learning various important aspect for the examination such as Hindu news analysis, important international organization, MCQs, strategy classes, polity and lot more. Don't forget to subscribe to the channel of Telegram that is Simplifying UPSC with Ease and use code Sharma20 to avail 10% discount on the classes started by Arpita ma'am. Just close your eyes for a minute and imagine a place where you want to be. Being a future IAS and IPS aspirants of this country, our dream place is Labasna. So let's get started and have our first step to this huge journey of moving to Labasna. Well, in this chapter or in this course, we are going to cover up the following chapters. Already we covered up two chapters, that's decline of Mughal Empire and emergence of new Indian states. In this class, we are going to study about advent of European settlement. Now remember this chapter 3, 4, 5, 6. This chapter are of utmost importance from UPSC mains as well as from the preliminary aspects of the various other competitive examinations such as SSC, railways, and your state PCS examination. If you're studying this chapter, at the end of this chapter, I'm going to tell you one mains question, and don't forget to give in a nutshell form of that answer in the comment section. You will be able to answer only if you listen to this class thoroughly and get onto this concept with an ease. Let's get started. Advent of European settlement. Now remember, advent of European settlement जो है यूरोप जो आए थे इंडिया में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में आए थे, ठीक है। वो सीक्वेंस क्या है, पोर्चुगीज पहले आए थे, फॉलोड बाय डच, इंग्लिश एंड देन फ्रेंच, ठीक है। अब इनके आपस में एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए सुप्रीमेसी इंडिया में ये लोग आपस में भी फाइट करते थे और ट्रीटी साइन करते थे। वो ट्रीटी क्या थी, कैसे थी, this all we are going to study, and in this class you are also going to learn about Carnatic War, that is basically Anglo-French rivalry. In this PPT you are not going to see, we are going to cover up it in our next PPT. Don't forget to see it because उसमें से भी काफी बार important questionnaires in the form of MCQ पूछे जाएंगे। तो पहले हम बात करते पोर्टुगीज इन इंडिया। पोर्टुगीज आए थे इंडिया में 1498 में, ठीक है, मई 1498 में आए थे। अब कैसे इनका आना हुआ इंडिया में वो हम स्टडी करते। देखो, कॉन्स्टेंटिनोपल एक प्लेस है, ठीक है, जिसको टर्क यानी कि बेसिकली टर्की रूल कर रहे थे 1453 में। टर्की ने इस पे अपना अच्छा खासा एस्टैब्लिशमेंट सुप्रीमेसी बना दी थी, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंटिनोपल इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें से है ना ट्रेडिंग अरब्स और एशिया के बीच में बहुत अच्छे से की जाती थी। तो टर्की वालों ने क्या किया, इस पे अपना कंट्रोल जमा दिया, ठीक है। और अरब्स काफी ज्यादा स्मार्ट थे, उन्होंने क्या किया, जो भी लैंड रूट से इंडिया पर आने के उस पे अपना कंट्रोल ले लिया। एंड इन बिटवीन देयर वाज अ फाइट बिटवीन पोर्टुगल एंड स्पेन, जिसको उन्होंने ट्रीटी ऑफ टॉर्देलास पे एक मुकाम दिया था। ये ट्रीटी ऑफ टॉर्देलास क्या है, बेसिकली एक अटलांटिक ओशन के आसपास उन्होंने इमेजिनरी लाइन बना दी थी, जिसमें से इमेजिनरी लाइन का जो ईस्ट हिस्सा है वो पोर्चुगल कंट्रोल करेंगे, जबकि स्पेन के पास वेस्ट आएगा। सो ये पार्ट में आपको ये रिमेंबर करना है, ट्रीटी ऑफ टॉर्देलास दैट वाज साइंड इन 1494। अब 4 साल के बाद पोर्चुगल आए इंडिया में और इंडिया का रूट किसने डिस्कवर किया, वास्को डी गामा ने, ठीक है। क्या हुआ था इसमें कि हमने अभी देखा कि लैंड रूट्स वर कंट्रोल्ड बाय अरब, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है उसको टर्की कंट्रोल कर रहे थे। तो पोर्चुगल ने क्या किया, ये देखिए अटलांटिक ओशन है,
इसका ईस्ट पोर्टुगल के पास कंट्रोल में है और वेस्ट स्पेन के पास। तो वास्को डी गामा जो आए यहाँ पे एंटर करे कैलकट पे, ठीक है, पूरा से घूम के आए वाया केप ऑफ गुड होप, इट्स अ प्लेस, एंड देन he got entered in India, discovered sea route to India, and वो कहाँ पे लैंड हुए थे, कैलकट। अब इसमें उनकी मदद किसने की थी, गुजराती पायलट जिसका नाम था अब्दुल मजीद। अब इंडियन ओशन में उस टाइम पे ट्रेडिंग के कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे, तो इंडियंस थे, अरब एंड अफ्रीकन्स, दे वर फ्रॉम ईस्ट कोस्ट। Now what happened, like why they came to India and landed in Calcutta? See, वास्को डी गामा आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पाइस रिच लैंड है। आपको हमेशा से पता है कि इंडिया अपने स्पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि ब्लैक पेपर हो, कैराबेंटिन हो, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बाहरी देश में रहती है। तो पेड्रो अल्वास कैब्रल ने क्या किया, उन्होंने स्पाइसेस के लिए ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब उन्हें लगा कि स्पाइसेस के लिए मुझे ट्रेडिंग का मतलब आसपास पे आज के टाइम पे इसको बिजनेस कहते हैं, ठीक है, एंड इसकी उन्होंने मोनोपोली बना दी। मोनोपोली इज व्हेन द सेलर इज ओनली वन एंड बायर्स आर मोर। सो पोर्टुगल ने इसका बेनिफिट लेके स्पाइसेस का ट्रेड शुरू कर दिया इंडिया में, वेरन उन्होंने कैलकट में अपनी फैक्ट्री बना दी, और वास्को डी गामा ने कैनौर में अपना ट्रेडिंग फैक्ट्री सेटअप कर लिया। इन शॉर्ट उनके 3 ट्रेडिंग सेंटर हो गए थे। यू हैव टू रिमेंबर दिस विद द टर्म ऑफ सी क्यूब। सी क्यूब मतलब कैलकट, कैनौर एंड कोचीन, दे वर द ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ। ना पोर्टुगल के पहले रूलर थे फ्रांसिस्को डी एल्मेडा, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अपनी एक ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी मींस उन्होंने पूरा का पूरा अपना ट्रेड सिर्फ और सिर्फ सी रूट के थ्रू रखा था। यहाँ पे इन्होंने अपनी मोनोपोली बना दी थी, एंड उन्होंने फोर्ट्रेसेस बनाए थे, अंजादीवा, कोचिन, कनौर एंड किलवा। नाउ यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस प्लेसेस। मैंने बता दिया, पोर्टुगल के ट्रेडिंग सेंटर याद रखने के लिए आपको सी क्यूब फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट कम अल्फांसो डी अल्बुक्यूनोर। नाउ जो रियल फाउंडर है पोर्टुगल के, वो हम कह सकते थे ये थे अल्फांसो डी अल्बुक्यूनोर। नाउ इन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना दिया ईस्ट अफ्रीका में, रेड सी शो के यहाँ पे, एंड जो पोर्टुगल पावर था पूरा का पूरा वो इनके कंट्रोल में आ गया था। इसके बाद रूलर आए निंडो कुन्हा, जिन्होंने नवंबर 1529 में रूल करना शुरू किया। एंड क्या हो रहा था तब तक, पोर्चुगल का जो हेडक्वार्टर था वो कोचिन था। पोर्चुगल देन शिफ्टेड टू गोवा, अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट किया उन्होंने। मीनवाइल, अब जैसे उनकी ब्लू वाटर पॉलिसी को मद्देनजर में रखते हुए पोर्चुगल की नजर पड़ी गुजरात के आसपास। यू नो वेयर इन द्यू इज देयर, द्यू के थ्रू भी बहुत ही अच्छा सी रूट ट्रेड किया जा सकता था। बहादुर शाह ऑफ गुजरात को जो रूल करते थे, उन्होंने इनसे प्रॉमिस किया था कि ये उनको द्यू में एक बेस देंगे उनके ट्रेडिंग सेंटर्स को बढ़ाने के लिए। सो अब पोर्चुगल के हाथ में क्या चीजें कंट्रोल में आने लगी थी, अब तक खाली पोर्चुगल है इंडिया में, एंड उन्होंने सी रूट पे अपना अच्छा खासा मोनोपोली बना दिया था। इसके बाद इनकी एक नई पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑनगोइंग हुई। पहले तो उन्होंने मिलिट्री पोस्ट बनाना शुरू किया एट सेंथॉम विद चेन्नई या नागापट्टनम, दैट्स इन आंध्र प्रदेश। देन गोवा एंड डेक्कन सुल्तान के बीच में इन उनकी ट्रीटी साइन हुई। बट पोर्चुगल वेयर दे लैक वाज रिलीजियस पॉलिसी। पहले तो उनका इंटॉलरेंस टुवर्ड्स मुस्लिम, दे नेवर एवर अप्रिशिएटेड एनी मुस्लिम रूलर, एंड उनमें एक बहुत ज्यादा जील यानी कि बहुत ज्यादा इच्छा थी कि वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर सके, ठीक है। इंटॉलरेंस टुवर्ड्स मुस्लिम कैसे हुआ था, एक बार पोर्चुगल्स की फाइट भी हुई थी फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर, वेयर इन that Sultan of Bijapur was being defeated. And remember, the Sultan of Bijapur fought with Alfonso de Albuquerque, which resulted into the defeat of Sultan of Bijapur,
रिजल्टिंग इट कि उसे अपनी टेरिटरी पोर्चुगल को देनी पड़ी थी। नेक्स्ट कम द डच। नाउ कोनल्स द हुटमैन वाज द फर्स्ट डचमैन जो सुमद्रन बंधान के कोस्ट पे पहुंचे थे इन द ईयर 1596। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाई एंड देन उन्होंने धीरे धीरे कोरोमंडल कोस्ट, गुजरात, यूपी, बंगाल एंड बिहार में अपना एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर्स बनाया। 1609 में उन्होंने पुलिकेत में अपनी फैक्ट्री बनाई विच इज प्रेजेंटली देयर इन नॉर्थ ऑफ मद्रास। Various other factories like Surat, Bhimlapatnam, Karaikal, Chinnasur, Baranagar, Kasim Bazar, and remember this Kasim Bazar आपको आगे भी एक प्लेस पे आएगा, वो किसके थ्रू आ रहा है दैट विल सी टू इट। बालासोर, पटना, नागापट्टनम एंड कोचिन ये इनके अदर फैक्ट्रीज थे। अब जैसे कि पोर्चुगल ने स्पाइसेस पे अपना होल्ड जमाया था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिगो एंड सिल्क पे अपना होल्ड जमाया, यानी कि बेसिकली टेक्सटाइल्स पे इन्होंने लिया था। सो इंडिगो ये यमुना वैली से लेते थे, सेंट्रल इंडिया टेक्सटाइल एंड सिल्क बंगाल, गुजरात एंड कोरोमंडल कोस्ट से ली जाती थी। डच इतने अच्छे से चल रहे थे बट डच कहीं ना कहीं इंग्लिश की सुप्रीमेसी फेस नहीं कर पा रहे थे। तो 1667 में they retired from India and then they got defeated in the Battle of Hooghly, that means in the year 1759, and most important was Battle of Badara wherein English defeated Dutch. Battle of Badara you can remember as BBD. B for Badara, B for Britishers, and D for Dutch and defeated. So remember, Battle of Hooghly and Battle of Badara took place in the year 1759, wherein the defeat was faced by Dutch. Now next come English in 1599. We all are familiar with this fact कि चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था ऑन December 31, 1600 कुछ राइट्स के साथ कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जनाब खाली ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, एंड सिंस इंडिया इज रिच लैंड ऑफ स्पाइसेस एंड एसेंशियल कमोडिटीज, वी वांट टू टेक this artistic things from India to our own region. Now on December 31st, 1600, Queen Elizabeth ने चार्टर इशू किया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आ रही है, एंड इसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। अब धीरे धीरे इंग्लिश ने आके यहाँ पे अपनी प्रोग्रेस बनाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने वेस्टर्न एंड सदर्न रीजन में अपना फुटहोल्ड जमाया। अब ये मसूलीपट्टनम जो है वो हर तरीके से एक ऑन द आई अट्रैक्शन ऑफ आई रहा है, चाहे वो डच के लिए हो या पोर्तुगल के लिए हो। सो 1611 में इंग्लिश ने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री ट्रेडिंग शुरू की एंड वहीं पर ही अपनी फैक्ट्री बना दी 1616 में। धीरे धीरे अंडर थॉमस ऑल्सवर्थ पे उन्होंने सूरत में अपनी एस्टैब्लिशिंग फैक्ट्री बनाई, एंड देन इन द ईयर 1615 when Thomas Roe he visited the court of Jahangir, उनको परमिशन मिली टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री एट 3 places namely आगरा, अहमदाबाद एंड ब्रॉच। अब ये बॉम्बे जो है ना इसको हेडक्वार्टर बना दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि पहले सूरत था। अब ये बॉम्बे की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, पोर्चुगल के रूलर की बेटी की शादी हुई थी इंग्लिश प्रिंस जिसका नाम था किंग चार्ल्स के साथ, ठीक है। सो पोर्चुगल के रूलर ने इंग्लिश को एज अ डावरी में ये बॉम्बे गिफ्ट किया था। इंग्लिश ने क्या किया, इसे हेडक्वार्टर बना दिया। फिर इसके बाद धीरे धीरे जैसे इंग्लिश ने देखा कि यहाँ पे ट्रेडिंग करना बहुत ही ज्यादा सिंपल हो रहा है क्योंकि इनकी कंपटीशन में और कोई है नहीं, तो वो आगे आगे चलते गए। क्या किया उन्होंने, सबसे पहले सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने इनको एक फरमान दिया। फरमान में क्या था कि वो ट्रेडिंग कर सकते बट उन्हें 500 पगोड़ास यानी कि इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद इंग्लिश ने कहा ठीक है हम लोग मान गए। नेक्स्ट 7 साल के बाद
ब्रिटिश मर्चेंट फ्रांसिस डे ने उनको एक रूलर, चंद्रगिरी के रूलर से परमिशन मिली कि वो एक फैक्ट्री बना सकते हैं मद्रास में, जिसका नाम उन्होंने रखा था फोर्ट सेंट जॉर्ज। एंड देन मसूलीपट्टनम वो इनका हेडक्वार्टर हो गया था इन साउथ इंडिया, वेर एज वेस्ट में इनका हेडक्वार्टर हो गया था बॉम्बे। Then they established factory at Hariharpura and Balasore in 1633. Now come the Bengal. Bengal again the rich heritage of our country. इस पे उन्होंने अपना फुटहोल्ड एस्टैब्लिश कैसे किया? तो जो शाह सूजा थे वो थे सुबदर ऑफ बंगाल के। सुबदर के बारे में आई थिंक सो आप सबको पता होगा। इफ यू नो, डू मेंशन मी इन कमेंट सेक्शन दैट व्हाट डज सुबदर मीन्स। इन 1651 उन्होंने क्या किया, इंग्लिश को अलाउ किया कि वो बंगाल में ट्रेड करेंगे, बट उनको एनुअल पेमेंट करना होगा ऑफ ₹3000। तो इंग्लिश मान गए कि फाइन, हमें पूरे साल भर का आपको इतना पेमेंट करना है। उन्होंने अपनी बंगाल में फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करने लगी। कहाँ पे? हुगली में एंड कसीम बाजार, पटना एंड राजमहल में। देन विलियम हेजेस आए जो बंगाल के पहले गवर्नर एंड ये ट्रेडिंग के एजेंट बने। उसके बाद सैयस्ता खान थे जो मुगल गवर्नर थे बंगाल के। दो गवर्नर थे, एक इंग्लिश का और एक उस टाइम पे मुगल का। इन 1698 व्हाट हैपन, इंग्लिश को परमिशन मिली कि ये सुल्तानिती, गोविंदापुर एंड कलकत्ता, जो कि बैंक्स ऑफ हुगली रिवर पे है, ये तीन विलेजेस, इसको उन्होंने खरीद लिया ऑन पेमेंट ऑफ ₹1200, बिकॉज इन्हें लगा कि यहाँ से हमारी ट्रेडिंग और अच्छे से हो सकती है। Then they established the Fort Williams in the year 1700, जहाँ पे उनकी ईस्टर्न प्रेसिडेंसी का रूल था, and Sir Charles Eyre was its first president. अब फारूक सैयर फरमान। फारूक सैयर ने ट्रेडिंग के 3 जगह पे इन्हें फरमान मतलब बेसिकली परमिशन दी थी, बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद 1715 में। ठीक है, इसमें क्या था फरमान के तहत कि जो कंपनी है उनका एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में जो कस्टम ड्यूटीज है वो चार्जिंग नहीं होंगी, दस्तक इश्यूज किए जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जब भी वो सूरत में ट्रेड करेंगी तो उनको सिर्फ और सिर्फ पेमेंट करनी ऑफ ₹10,000, रेस्ट ऑल ड्यूटीज आर एग्जेम्प्टेड। एंड द कॉइन्स दैट वर मिंटेड इन मुंबई, उनकी करेंसी जो है वो थ्रू आउट द मुगल एम्पायर चलनी चाहिए। ये सारे बस सिंपल से फरमान के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो कि एक्सेप्ट भी किए गए थे बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। Then Sir William Norris, he was appointed as the ambassador to the court of Aurangzeb, and इसमें दो कंपनी को मर्ज किया गया था अंडर द सिंगल टाइटल ऑफ यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज इन द ईयर 1708। अब इसका ड्रॉबैक पता है क्या था फरमान का, कि जो ड्यूटीज के लिए इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया था, कस्टम ड्यूटीज की चार्जेस नहीं थे, बिकॉज ऑफ दिस कहीं इंग्लिश ऑफिशियल्स इसे बेनिफिशियली ले जा रहे थे, जिसके कारण बंगाल और बाकी सारे स्टेट्स कहीं ना कहीं लॉस में जा रहे थे। और ये कैसे लॉस में गए वो बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर में डिस्कस किया जाएगा इन द नेक्स्ट लेक्चर। The French, they came in 1667 and they founded a company named Compagnie des Indes Orientales, जिससे 50 years की मोनोपोली मिली गई थी। इन 1667 फ्रांसिस कोरन ने सीधा वो सूरत गए एंड इनकी मदद इसमें एक पर्शियन रूलर ने भी की थी। They founded French factory in Masulipatam in 1669 and then they established their own township in 1673 at Chandernagore near Calcutta. आप जरा लेक्चर पे ये गौर कीजिएगा कि वहाँ पे ट्रेडिंग सिर्फ वही जगह पे हो रही है जहाँ पे सी रूट्स का बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, जैसे कि कैलकाटा है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, एंड यू नो दैट गुजरात हैज गॉट द हाईएस्ट कोस्ट लाइन, बिकॉज ऑफ विच फ्रेंच, इंग्लिश, डच, पोर्तुगल को हर एक को यहाँ पर आके ट्रेडिंग करने में इसलिए इजी हो रहा था, कस्टम ड्यूटी नहीं थी, इजीली वो लोग फॉर्म कर सकते थे अपनी मोनोपोली। रिमेंबर, फारूक सैयद फरमान was being published only for English East India Company.
एंड फ्रेंच में हमने अभी देख लिया कि उन्होंने अपनी टाउनशिप भी बना दी थी चंद्रनगर नियर कैलकाटा में। अब फ्रेंच का जो मेन नर्व था ना वो था पौंडीचेरी, दैट्स नर्व सेंटर ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया। फ्रांसिस्को मार्टिन वो मसूलीपट्टनम फैक्ट्री के डायरेक्टर थे एंड इन्होंने पौंडीचेरी फाउंड किया था इन 1674। ओके, इसके बाद फ्रांसिस कैरॉन वो फ्रेंच गवर्नर बन गए एंड देन ट्रेडिंग सेंटर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी माहे, किरायकल, बालासोर एंड कजीम बाजार हो गए थे। अब ये फ्रेंच जो है ये ऑटोमेटिकली पीछे आते गए कैसे? डच ने पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया था, ठीक है, in 1693 and then a treaty of Ryswick was signed between French and Dutch। ट्रीटी के तहत पौंडीचेरी जो है वो फ्रेंच के कंट्रोल में रहेगा, बाकी सारी चीजें डच के कंट्रोल में आ जाएगी। So yeah, with this we end our class for today and your next class will be of एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। मैं उसका आपको ब्रीफ बता देती हूँ। उसमें क्या होगा कि फर्स्ट कर्नाटक वॉर, सेकेंड कर्नाटक वॉर एंड थर्ड कर्नाटक वॉर जो बेसिकली ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच में की गई थी विद द हेल्प ऑफ इंडियन रूलर्स, आप वो अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आज के बेसिकली आपके 2 लेक्चर्स कवर अप हुए हैं, कर्नाटक वॉर दैट्स एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंड एडवांट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। एंड in comment section you have to tell me what does subedar means, and in a nutshell you have to tell me that explain how come Portuguese were the first one to come in India and the last one to go from India, and explain their role in India. So with this I Himani Joshi signing off. See you in next class. Do well, study well. Thank you.